Hi everyone, let me quickly check if we are live before we begin this session. Oh yes, this is perfect. Hi, good afternoon everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. My name is Rachana. Oh yes, this is perfect. Hi, good afternoon everyone. I welcome you. So this is all right. The volume on the phone was very loud. So, good afternoon, everyone. I welcome you all. My name is Rachana, and I welcome you all to this YouTube live streaming. Let me quickly take a moment to introduce myself. Those of you who are watching me for the first time, I'm a chartered accountant by profession. This whole thing, this platform is brought to you by Unacademy platform, where I work as an educator. I teach business correspondence and reporting to CA students under the CA category. Other than this, my dear friends, I have been in the industry for almost 20 years now. I have continued to be in practice for almost 18 years. Earlier part of my career, initial part of my career, I was employed with several corporates for almost a decade and a half. It's been a little above 15 years, it's more than 15 years that I've been extensively working with professionals and students to help them develop their communication skills, their soft skills, and also I've been assisting them with uh, professional grooming and interview preparations. So, interview preparations has been my area of expertise to help candidates, to help professionals with effective interview preparations has been one area of my under my expert domain. And this is why I feel today I'll be able to give you some inputs that can certainly benefit you in your job search. When you have already landed an opportunity of interview, or perhaps if you're trying for one, with these inputs you would certainly be able to enhance your performance. दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है आप सबसे करने के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन जो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड मैंने इसका ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सारे वो टिप्स वो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो अगर आप ध्यान रखें जो अगर आप सोचें उस पर अमल करें तो आप यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन एनी इंटरव्यू आपका जो है प्रिपरेशन ही यहाँ पर मैटर करते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए आपने एक जॉब एक काफ़ी एक रिसेशन का टाइम चल रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है यहाँ पर काम की जो है कमी रिसेशन का फेस है तो यहाँ पर ले ऑफ्स हो रहे हैं पे कट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं काम की रिक्वायरमेंट जो है सब में बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभी ये चीज़ दिख रही है if you all are connected with me, many of you are connected with me over LinkedIn पर मैं काफ़ी एक्टिवली लिखती हूँ आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास वहाँ पर मेरे साथ जो है कनेक्टेड भी हैं और अदर देन दिस अनअकैडमी पर भी हम में से बहुत से लोग जो हैं आप और हम कनेक्टेड हैं so we have seen that the phase is difficult for one all एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में जो अपने एग्ज़ाम्स प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आई है टू find out suitable opportunities to land suitable opportunities आपने बहुत सारे aspirations होते हैं कहीं ना कहीं ambitions छुपे होते हैं behind all these clearing all these professional exams अपने आप से भी जो है बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई होती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उम्मीदों को पूरा ना करना जो है that can be a setback that can perhaps be a big stressor तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्योंकि रोज़ में मैं एटलीस्ट आई एम आंसरिंग हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एवरी डे to give some guidance, to offer some inputs to the candidates that can prepare them better for the interviews. This is why I thought to make this session live ताकि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों उनको ये जो इनपुट्स हैं ये हेल्प कर सके जॉब इंटरव्यू की दोस्तों आज बातें करने वाले हैं अगले 50-55 मिनट में आप सब तक वो इनपुट्स दूंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए अगर आपको अभी तक एक डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं था तो आई एम श्योर इन नेक्स्ट 55 to 60 minutes you'll be more clear in your approach and you will have a direction how you should proceed for any job interview any interview that you're going to attend or face दोस्तों प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है बात और क्या है हाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की किसी भी सक्सेस के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रिपरेशन
एंड जॉब इंटरव्यूज आर नो एक्सेप्शन। किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी काम में आपका प्रिपरेशन जो है वो मेन एलिमेंट हमेशा होता है। सो फ्रॉम योर कंफ्यूज स्टेट टू बीइंग prepared, most prepared for an interview, what all you need to consider। आपका 3 पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करें इंटरव्यू प्रिपरेशन को, इंटरव्यू की पूरी बातचीत को, प्री इंटरव्यू आपके लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, जब वहाँ पर आपकी बातचीत हो रही है, एंड पोस्ट इंटरव्यू। तो कुछ जो ब्रॉड हेड्स हैं ना, आपने इस पर बहुत चर्चा सुनी होगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बट जो क्रक्स है वो आज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। प्री इंटरव्यू आपको कुछ चीज़ें बिना प्रिपरेशन के किसी भी इंटरव्यू से बहुत उम्मीदें लगाना जो है वो जस्ट नहीं है, वो फेयर नहीं है किसी भी तरीके से। तो प्री इंटरव्यू आपके लिए क्या ज़रूरी है? रिसर्च, आपका अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके कवर लेटर और आपका रिज्यूमे, उनका एक रिव्यू, उसमें आपने क्या लिखा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, बिकॉज वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके द्वारा आप से जो है कनेक्शन हो पाया है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का, या फिर जो आपको आज इंटरव्यू करने बैठे हैं इंटरव्यूअर्स, व्हाट दे हैव सीन until now is your documents, your documents, your cover letter and your resume through which they have got to know you। वो शॉर्टलिस्ट किया गया है और आपको फिर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सो दे हैव नोन यू थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिट। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च, आपको क्या क्या जानना चाहिए ये आगे मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है। आपको एक थॉरो रिसर्च, अगर आपका कल इंटरव्यू है या 2 दिन बाद इंटरव्यू है, सो यू शुड स्टार्ट दैट प्रोसीजर। प्री इंटरव्यू एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन पहले जो है अपने ये रिसर्च और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, अपना पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जाने वाले हैं, अगर फॉर लेडीज आई वुड से आपका जो भी आगे की आपकी ग्रूमिंग, मतलब उसमें आपका ड्रेसअप, आपका हेयर जो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, यू नो, हल्का जो है डिओड्रेंट अगर आपको यूज़ करना है तो कुछ माइल्ड सा होना चाहिए। आपके नेल्स वगैरह जो हैं दे शुड नॉट बी, अगर नेल पेंट वगैरह यूज़ किया, शुड नॉट बी चिप्ड ऑफ। बेसिक जो है ग्रूमिंग एंड हाइजीन की जहाँ तक बात होती है, ओरल आपकी हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप मतलब ग्रूमिंग के बारे में एक पूरा मैंने जो है अलग से आप हाँ, ड्रेस फॉर सक्सेस एंड ग्रूमिंग के बारे में एक अलग से वीडियो है, आप यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। अनअकैडमी पर ही मैंने एक लाइव क्लास ली थी यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। You can look for professional grooming and you can look for dress for success and रचना खरे श्रीवास्तव, आपको मिल जाएगा पूरा जो है वहाँ पर 1 घंटे का पूरा डिस्कशन मैंने किया था। और इसके अलावा प्रैक्टिस, जो सबसे ज़रूरी बात है, प्रैक्टिस इज़ द की। आप अगर 1 बार 2 बार 3 बार अगर आपको जो क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस जो हों कि भाई यू शुड प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू शुड प्रैक्टिस आंसरिंग सम ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके डोमेन से रिलेटेड है, जो आपके काम, आपके एक्सपर्ट एरिया से रिलेटेड है, ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपका कॉन्वर्सेशन पार्ट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको वहाँ पर नर्वसनेस की बात जो है आपको बिल्कुल भी वैसी फीलिंग नहीं आएगी। जब तक एक जो इंटरव्यू है ना, जब तक वो एक कॉन्वर्सेशन की तरह रहता है, अगर आप एक इंटरव्यू को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं जो कि एक एनरिचिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप बहुत कुछ जानने गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जहाँ आप अपने बारे में बहुत सारी जानकारी देने गए हैं, जो भी जानकारी उपयुक्त लगती है इंटरव्यूअर्स को, आपके बारे में जानने योग्य लगती है, वो आप अपने बारे में बताने गए हैं। आई थिंक एवरी वन फील्स डिलाइटेड टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अगर ये हम इसको इंटरव्यू का नाम ना दें और आप अपने दोस्तों के साथ हों या फिर आप कहीं पे भी आप सोशलाइज कर रहे हों, अगर आपके बारे में कोई क्वेश्चंस पूछे जाएँ, अगर आपसे और जो है आपके बारे में राय मशवरा लिया जाए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आप किस तरीके से जो है अपने काम की ओर आगे अग्रसर हैं, ये सारी बातें अगर आपसे पूछी जाएँ तो आपको हमेशा अपने बारे में बताना बहुत अच्छा फील होगा। किसी को भी, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। एवरीबडी लाइक्स टू showcase their accomplishments, everybody likes to talk about themselves, their achievements, their accolades, जो भी है, ये हम सबको इनहेरेंट ह्यूमन टेंडेंसी होती है। वी फील हैप्पी टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स। तो ये जो हमारा इंटरव्यू है, इसको भी हमें इस एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करना होगा जहाँ पर हम कनेक्ट करने की कोशिश कर सके इंटरव्यूअर्स से। कनेक्ट करना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने में मत जाइए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल है, थोड़े से प्रैक्टिस से, थोड़े से कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर आपको इंटरव्यू का नाम लेते ही इफ़ यू फील नम, अगर आपको लगता है कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, अगर आपको नर्वसनेस, अगर आपको एंग्जाइटी जो है ये आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। More than 70% of the candidates, they experience anxiety, they have stress when
it is about attending any of the interviews, any of the conversations with people in the senior authority, at the senior level of the authority. जिनका जब अथॉरिटी में डिफरेंस होता है, जब स्टेटस में डिफरेंस होता है, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते समय more than 70% of the people, normally this is based on research, whatever numbers I share with you, whatever statistics I share with you is based on thorough researches by बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं, आप अलग से आप चेक कर सकते हैं सोर्सेज के लिए, आप चाहे तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आई कैन गिव इट टू यू बेस्ड ऑन सेवरल रिसर्चेस. तो ये जो है ये आपके साथ एक कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रही है, कॉमन है, सबके साथ होता है. इसको ओवरकम किया जा सकता है विद सम प्रैक्टिस, सम परसिस्टेंस, आप इसको जो है ओवरकम कर सकते हैं. ड्यूरिंग द इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ एक तो स्लाइड इस बारे में भी मैंने ली है कि भाई एम्प्लॉयर्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, व्हाट डू एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. इसके अलावा जो आपको खास ध्यान में आप रख सकते हैं, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज. किस तरीके से आपको अपनी नर्वसनेस को आड़े नहीं आने देना है. What kind of body language will be fruitful to you, will help you showcase your skills in more effective manner to the interviewers. आपकी एलिवेटर पिच क्या, जो 1 से 1.5 मिनट आप अपने बारे में बताने वाले हैं इंटरव्यूअर का. नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज आस्क्ड टू, स्पेशली टू द फ्रेशर्स, टू जूनियर मिड लेवल प्रोफेशनल्स को जो पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टॉक अबाउट योरसेल्फ. तो ये जो है आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. आप अपने एक एलिवेटर पिच 1 से 1.5 मिनट की आपको तैयार रखनी चाहिए, जहां आप अपने सारे स्किल्स जो है, अपनी कॉम्पिटेंसीज, आप में जो भी क्वालिटीज़ है जो आप शोकेस करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. एलिवेटर पिच इज समथिंग मोर लाइक यू नो, आपका मार्केटिंग के लिए जो आपको एक सेलेबिलिटी के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे, आप अपने एक जो एलिवेटर पिच तैयार किया जाता है, जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट बातें, जैसे अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेंसिल है, अब मुझे ये पेंसिल जो है ये मुझे सेल करनी है, आई वांट टू सेल दिस पेंसिल, सो आई विल हाईलाइट ऑल दी possible features of this pencil that can help you present this pencil as the best one in the category. मैं इसको इस तरीके से कि भाई इसके जो lid है, this is the graphite lid, look at the colors of the pencil, they're vibrant, and इसका hexagonal grip है which is very strong, which helps us write better, it gives a good handwriting. So all these things I'll say so that this pencil, इसका जो sellability है वो enhance हो जाए. सिमिलरली एलिवेटर पिच जो है आपकी मार्केटिंग, आपके एडवर्टीजमेंट के लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट पॉइंट्स दैट यू कैन हाईलाइट अबाउट योरसेल्फ टू मार्केट योरसेल्फ बेटर. अब ये एलिवेटर पिच जॉब की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जॉब मार्केट की बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, तो ये आपके बारे में है. अदरवाइज ये अगर आप कोई बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है. अगर आप कोई डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और आप जो है किसी क्लाइंट मीटिंग में आप मिलने वाले हैं, वो एक डिफरेंट तरीके का पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है, तो ये डिफरेंट हो सकता है. यहाँ पर एलिवेटर पिच जो है इंटरव्यू के दौरान ये आपके बारे में होनी चाहिए. आप अपने बारे में, अगर 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपके पास है, तो कौन सी वो बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे इंटरव्यूअर को. आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आने वाली स्लाइड्स में हम जरूर डिस्कस करेंगे ये एक बार. आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से, आपके बॉडी लैंग्वेज से इजीली जो है महसूस किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, इंटरव्यूअर्स को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए. दैट इज़ एन एक्सपर्ट पैनल, दे विल बी एबल टू क्विकली असेस योर कॉन्फिडेंस लेवल्स. तो आपको जो है वहाँ पर कंफर्टेबल होकर के जाना है और अपना कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना है. योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल्स शुड बी जस्ट राइट. कि जहाँ पर आप जो भी कोड करें, एग्जाम्पल्स दें, अपने बारे में बातें बताएं, आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ कीवर्ड्स उसमें यूज़ कर सकें और आप अपने स्किल्स को जो ओपन पोजीशन है जिसके लिए आपका इंटरव्यू किया जा रहा है, उससे आप मैप करते हुए जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकें. नेगोशिएशन एबिलिटीज़ आपकी होनी चाहिए और ये आपको जो है शोकेस ज़रूर करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नेवर अवॉइड नेगोशिएशन. अगर नेगोशिएशन करने पर बातचीत आ गई है, नेवर अवॉइड नेगोशिएशन. आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. अभी 3-4 दिन पहले आई थिंक नेगोशिएशन स्किल्स पे हमने एक पूरी डिस्कशन की थी, बेहतरीन डिस्कशन वहाँ पर हमने की थी. आप चाहें तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं. पोस्ट इंटरव्यू एक जेंटल थैंक यू जो है ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है, एंड अ जेंटल फॉलो अप. आप एक वार्म थैंक यू बोले और एक जेंटल फॉलो अप मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज. एक
दो तीन बातें यहाँ पर होती हैं। फॉलो अप ये हो सकता है कि आप बार बार जो है मेल कर रहे हैं, बार बार कंसिस्टेंटली आप कॉल कर रहे हैं एचआर को, रिक्रूटर को, और मे बी आपने इंटरव्यूअर्स के साथ अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो। और एक तरीका हो सकता है कि आप थोड़ा सा टाइम लेकर के आफ्टर 2-3 वर्किंग डेज यू जेंटली फॉलो अप, you call them, you greet them, and you ask, hey, where are we and what is the status? Or maybe you can just send a polite email. So that can be a better way to follow up. आगे देखते हैं दोस्तों, रिसर्च और रिव्यू से शुरू करते हैं। जो भी बातें हमने प्रिपरेशन के अंतर्गत डिस्कस की हैं, इसको एक बार अलग अलग जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। रिसर्च और रिव्यू इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रिपरेशन का। आपको कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपको ज़रूर रिसर्च जो है वो करनी चाहिए। विजन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो है, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर करता है मार्केट में, जो है क्या स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करता है, क्या चैलेंजेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, टाइप ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ वर्क दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनको कि बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सो इट्स वेरी लाइकली कि भाई आपको किसी जो है नॉर्मल ऐसे डे टू डे जॉब्स के लिए हायर नहीं किया जाने वाला है। दे आर लुकिंग एट प्रोस्पेक्टिव लीडर्स एंड मैनेजर्स। आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपको जो है एक आप अपने आपको पोजीशन जो है आपकी रेगुलर जॉब नहीं होने वाली है कि कोई नंबर क्रंचिंग रोल या फिर आपको कोई बेसिक डे टू डे हैंडलिंग के लिए, कोई फाइलिंग वर्क के लिए आपको हायर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको ज़रूर इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म अगर आप एसोसिएशन चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपना जो है अपने गोल्स को कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करता हुआ दिखा सकें, जिससे कि आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये बात जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट कर पाएंगे अगर आपने कंपनी के गोल्स के बारे में रिसर्च कर ली है। कंपनी का एम्प्लॉय कल्चर कैसा है, how do they operate, what do they work on, what are their main areas of work, इसके अलावा उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, क्या चैनल क्या जो है कॉम्पिटिटर्स उनके कौन है, किस तरीके का, क्या उनके लिए चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। चाहे तो आप उनका एक आध एनुअल रिपोर्ट वगैरह है वो आप ज़रूर देख करके जाएं, उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके का क्या आपका मार्केट में जो है स्टैंडिंग है कंपनी के, किस ऑर्गेनाइजेशन को आप टारगेट कर रहे हैं काम के लिए। इनफैक्ट आपको अपने फिटमेंट का भी जो है काफ़ी हद तक फेयर आइडिया हो जाएगा कि भाई हाउ विल यू एडजस्ट वेल विद द कंपनी कल्चर। आप जो है जो सोच रहे हैं, जिस वजह से आप टारगेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो रिक्वायरमेंट्स, क्या वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, ये सारी बातें आपको इस पर काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी इफ़ यू रिसर्च अबाउट द कंपनी वेल। इसके अलावा आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके हाथ में है और आपका जो आपके पास आपका रिज्यूमे और आपका कवर लेटर है, ये आपको ज़रूर एक बार रिव्यू करना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर केसेस में 99% ऑफ द केसेस यू विल हैव अ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर हैंड, या आप किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू गए होंगे या फिर आपको फर्स्ट लेवल जो एचआर या रिक्रूटर हैं उन्होंने आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन बताया होगा, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए। आप बिल्कुल क्लैरिटी से आप उसको देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो भी हैं, जो भी आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होने वाला है इन केस यू जॉइन दिस पोजीशन, तो वो आप कैसे उसको अपने कुछ अकम्पलिशमेंट से, अपने रिज्यूमे में जो आपने वर्क एक्सपीरियंस दिया है, आपने अपना जो स्किल सेट दिया है, कवर लेटर में जिस तरीके से आपने बातें जो हैं बताई हैं अपने स्किल्स के बारे में, आप उसको कैसे मैप कर सकते हैं। कवर लेटर में यूजुअली ये किया जाता है, पर कवर लेटर जो है इतना लंबा नहीं हो सकता, कवर लेटर की लिमिटेशन है, भाई जगह वहाँ पर कम होती है। आप एक या दो पैराग्राफ किस तरीके से हाउ यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन एंड लिटिल बिट ऑफ मैपिंग ऑफ योर स्किल्स कैन बी डन विद द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब ऑफ द रोल। तो ये आपको जो है आपको थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पर करना है। ये आपके कॉन्वर्जेशन के लिए काफ़ी सारा प्लॉट दे देगा आपको। ऑब्वियसली जब कॉन्वर्जेशन होती है, जब इंटरव्यू के दौरान इंटरेक्शन होता है, तो इंटरव्यूअर्स का फोकस होता है फॉर द रिक्वायरमेंट्स एट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोल, कि भाई ये जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, हमको इसके लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो है वो चाहिए।
है ना, जो बेस्ट फिट हो उनको। कभी भी इंटरव्यू का आप ये ध्यान रखिए, इंटरव्यू का जो एक आप कहना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता है कि किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है या फिर हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना है, उनमें कोई कमियां निकालनी है। ये जो असेसमेंट है ये पूरी तरह से एक ही बात पर फोकस्ड है, भाई वी वांट टू हायर द बेस्ट फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दिस पोजीशन. Now being on the other side of the table, now since I've been hiring for long for various organizations, I can firmly say this, during any interview the focus is simply on one thing, कि हमको right correct fit जो है, most suitable fit जो है वो मिल जाए इस पोजीशन पे. दैट इज ऑल. बाकी किसी भी इंटरव्यू का एम किसी कैंडिडेट को ह्यूमिलिएट करना, उनको कोई नुकसान पहुंचाना, उनको स्ट्रेस देना, ये जो है ये नहीं होता है. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. आपको इसलिए जो है आपको अपनी तैयारी, अपना प्लॉट आपको रेडी रखना चाहिए. अपने रिज्यूमे में, अपने कवर लेटर में आप बहुत ध्यान से देखिए, आपके कवर लेटर के थ्रू ही अभी तक इंटरव्यूअर्स आपको जानते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं वो आपको जानते हैं. तो अपने कवर लेटर और रिज्यूमे में जो भी बातें आपने हाईलाइट की हैं वो आप किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैप करते हुए बता सकते हैं. Your articulation abilities will play an important role here. They are vital. किसी भी इंटरव्यू के दौरान अगर आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आई एम द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल, आप अपनी जो है विलिंगनेस की, अगर जो आप में कहीं कुछ ना कुछ, अगर कुछ टेक्निकल एबिलिटीज़ या दूसरी कोई स्किल सेट जो है वो कहीं कम ज़्यादा भी है, एंड इफ़ यू आर ओपन टू लर्न, इफ़ यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. As an interviewer, as an employer, I would prefer a candidate who's coachable and who's willing to learn, instead of a candidate who's closed and who thinks that they know everything. ये भी सब काफ़ी प्रॉब्लम आती है. जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी हद तक कई बार रिजिड भी होकर के सामने आते हैं कि भाई मेरी आर्टिकलशिप जो है वो बिग 4 में हुई है, मेरी आर्टिकलशिप बिग 20, बिग 10 में हुई है, सो आई थिंक आई नो एवरीथिंग, मुझे बहुत कुछ आता है. इंटरव्यूअर्स को पहले से ही एक नोशन हो कि भाई इंटरव्यूअर्स जो हैं ये बैठे इसलिए हैं हमारा मूड बनाने के लिए, या फिर ये जो है हमें समझना ही नहीं चाहते हैं, इनका काम ही है रिजेक्ट करना. तो ये प्री कंसीव नोशंस होता है, इसको जो है हटा करके चाहिए इंटरव्यू में. किसी भी इंटरव्यू में आपके लिए पूरा प्रोसेस एंजॉयबल हो जाएगा अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और पोजीशन को ध्यान में रख करके अपना बेस जो है एक तैयार करके जाएंगे. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो हर किसी को प्रिपरेटरी पार्ट में अपने प्रिपरेशन के दौरान करके जाना चाहिए. आप अपने मेजर अकम्पलिशमेंट्स जो आपने दिए हैं, अपने एक्कॉलेट्स और अकम्पलिशमेंट्स के सेक्शन में, अचीवमेंट्स में जो भी आपने लिखा है उसको आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए और उसको आप ध्यान रखिए. क्योंकि अभी तक ये नहीं कि रिज्यूमे एक बार बनाया है और सिर्फ जो है वो हमने डालने के लिए रखा हुआ है कि भाई मुझे वो शॉर्टलिस्ट हो जाए तो मुझे एक चांस मिल जाए इंटरव्यू का. दिस शुड नॉट बी द एम ऑफ योर रिज्यूमे. आपके रिज्यूमे का क्लियर पर्पस होता है टू लैंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंटरेक्शन, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन वेल एक्वेंटेड विद द रिज्यूमे. व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड इन द रिज्यूमे, the interviewer, the prospective employer is getting to know you through that resume only, right? That is the only document through which they have known you. तो आपको उससे बिल्कुल familiarity होनी चाहिए. आपको रिज्यूमे से कुछ भी पूछा जाए तो वो आपके बारे में, वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो डिपेक्ट करता है. आपकी पर्सनालिटी को वहाँ पर रिज्यूमे ने ही रिप्रेजेंट किया, तो आपको फटाक से जो है आप उससे रिलेट करके अपनी बातें जो क्लियरली आप बता पाएँ तो वो आपके बहुत ज़्यादा आपके फेवर में होगा. मैप योर कॉम्पिटेंसीज विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये प्लॉटिंग तैयार रखना चाहिए. एंड लर्न द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर सिमिलर पोजीशन एंड प्रोफाइल. ये दोस्तों एक रिसर्च करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है. हमेशा आप पूछते हैं, आप एचआर से पूछते हैं, फर्स्ट लेवल आप रिक्रूटर से पूछते हैं, वो सब ठीक है. आप अपने लेवल पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन पर बात आकर के जो है अटक जाती है. कई सारे कैंडिडेट्स लिंक्डइन पर, I have a lot of connections and friends who are job seekers, जो अभी नए freshly qualified चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, भाई जॉब सीकर्स हैं, वो काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू, सम आर ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन प्रैक्टिस, जो है वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने की मार्केट में. दे आर ट्राई टू प्लांट देयर फीट. यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि इंडस्ट्री का आप कितना नॉलेज रखते हैं. हाउ अवेयर आर यू अबाउट द स्टैंडर्ड्स, हाउ अवेयर आर यू अबाउट द ऑफरिंग्स टू द सिमिलर पोजीशंस बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको इसकी जानकारी जो है वो बहुत ही क्लियरली होनी चाहिए. आप इससे पहले कि आप नेगोशिएट करें या बार्गेन करें, अगर आपको फेयर आइडिया है कि भाई कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कंपैरिजन पार्ट जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, वो आपको जो है
कई बार आप ओवरलुक कर जाते हैं अपने खुद के स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को। पर यहाँ पर बहुत ही वाइड है, जो अगर आप देखा जाए आपका जो रेंज है ना, दैट इज़ अ वेरी वाइड ब्रॉड रेंज, कि भाई 3-4 लैक्स कहीं ना कहीं जो है, 3 लैक्स 2.5-3 लैक्स के भी मैंने ऑफर्स देखे हैं, और इट राइजेस अप टू 80-90 lakhs also per annum for a fresh chartered accountant, for a freshly qualified chartered accountant. तो अगर हम इसकी इस रेंज की बात करें, दिस इज वे टू ब्रॉड। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जब एस्पिरेशंस होते हैं, जब मन में जो है हमारी उम्मीदें होती हैं, आपको कहीं ना कहीं वो मैच करनी होंगी, आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए at your level for the position that you are targeting with your skill set. How much will be an average standard range? तो आप वो रेंज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई कोई चीज़ जो है आपके लेकर कम जा रही है, सो यू विल बी इन अ बेटर कैपेसिटी, बेटर पोजीशन टू बार्गेन। अगर आपके लिए वो आपको लग रहा है कि ऑफर जो है वो ठीक ठाक है, बेहतर है आपके लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें, आप हिचकिचाएं ना। तो थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड्स का एक सिमिलर पोजीशन के लिए, आपके स्किल सेट के लिए जो है किस तरीके के ऑफर्स हैं, आपको आपके कोई काउंटर पार्ट्स हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके का जो है वो सैलरी, किस तरीके का पैकेज वो ड्रॉ कर रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से कुछ जिनका स्किल सेट आपसे सिमिलर है और उनकी प्रोफाइल जो है अगर मिलती जुलती है, अगर आप उनसे कुछ डिटेल ले सकें। मार्केट में बहुत सारा जो है मटेरियल अवेलेबल है। आजकल तो वेब में आपको, वेब पर सब कुछ मिल जाएगा। आजकल इंटरनेट के ज़रिए जो है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो काफ़ी हद तक आप जो है अपना रिसर्च वर्क आराम से घर पर बैठ कर एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप ये निपटा सकते हैं। और ये आपको ध्यान में रखेंगे आप, अगर आपके जहन में ये बातें होंगी क्लियरली, तो आपको नेगोशिएशन के दौरान कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपके इंटरेक्शंस जो है, क्लैरिटी इन एनी कन्वर्सेशन ड्यूरिंग एनी कम्युनिकेशन विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। उसकी क्लोजर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आपको लगेगा, आपको डेफिनेटली यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आप फंबल नहीं करेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी डिस्कशन के समय। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। इसके अलावा दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस, दिस इज पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान जो आपका नॉन वर्बल कॉम्पोनेंट होता है, वो इट इज ऑलमोस्ट 93% ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन। ओनली 7% इज द वर्बल पार्ट। तो आप सोच सकते हैं, ये जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में की जाती हैं। प्रोफेसर एल्बर्ट मेराबिया का जो है मॉडल, वो दैट यू वुड पॉपुलरली नो दैट एज 55-38-7 रूल, कि भाई 55% जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, 38% इज ऑफन योर पैरा लैंग्वेज, जो पैरालिंग्विस्टिक्स आपका टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच जो होती है, आवाज़ कितने ज़ोर से धीरे से आपने बात बोली, क्या कहा आपने, मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे जो है, एम्फेसाइज किया, आपको कहाँ पर एम्फेसाइज करना था, कहाँ पर नहीं करना चाहिए था, किस तरीके की आपकी पिच थी, आपका वॉल्यूम कैसा था, ये सब पैरालिंग्विस्टिक्स होती है। और उसके अलावा 7% इज योर जो है वर्बल, आपका जो है वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, वो सिर्फ 7% होते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज विल इंक्लूड एवरीथिंग, योर पोस्चर, कैसे आप खड़े हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, योर जेस्चर्स, मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, राइट, योर आई कॉन्टैक्ट, ये सारी बातें जो हैं ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कैसे आप छोड़ सकते हैं 93% को? That is going to make a significant impact on whatever conversation, whatever communication you are doing. तो आपको ये, आपका appearance भी non-verbal का एक significant part है। How do you appear in front of others? How do you look to them? How do you, आप जैसे कोई smart है, कोई smart नहीं लग रहा है, you're looking very clean, neat and hygienic, you're looking very presentable. This adds to your confidence. This adds to your charm. ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये आप अगर आउटफिट की, अपीयरेंस की हम बात करें, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज डोमेन्स लाइक कंसल्टिंग, फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, ये सब जो है थोड़े से स्ट्रिक्टर डोमेन्स हैं। यहाँ पर हमें अक्सर क्लाइंट फेसिंग रोल्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो है हमें लाइजनिंग वगैरह करनी होती है। समवेयर वी आर एट द फल्क्रम ऑफ एवरी बिजनेस। जो भी, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्रिएटिव डोमेन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अपीयरेंस काफ़ी मैटर करता है। अनलाइक इन वेरी जो स्पेसिफिक टेक डोमेन्स होते हैं, जहाँ पर जो है लोग टी शर्ट में भी कई बार ऑफर्स आते हैं, उनके जो है कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता
उनका जो ड्रेस कोड वगैरह होता है वो थोड़ा सा इजी होता है. अदर क्रिएटिव डोमेन्स ऑल्सो जो है फैशन है या कोई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो है ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता है. एंड दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिबर्टी जो कि हमारे साथ नहीं है. सो दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ आवर डोमेन. जिस तरीके का हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ड्रेसअप भी डिफाइन होता है. और आपका अपीयरेंस कि भाई आपकी अपीयरेंस कहीं पर भी हो, आपका ओवरऑल, जैसे मैंने ग्रूमिंग की बात की थी, इट इज लार्जली रिलेटेड टू योर अपीयरेंस कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. तो आपको इसके लिए अपना आउटफिट वगैरह जो भी आपने पहनना है कल, अब आप नया ट्राई नहीं करना चाहिए इसमें. व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई रिकमेंड इज वेयर समथिंग इन विच यू आर कंफर्टेबल. बहुत टाइट, बहुत लूज ना हो. ड्रेस टू सक्सेस में मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, डिटेल्स में डिस्कस की हैं. कलर कोड वगैरह, किस तरीके के कलर प्रेफरेंसेस आप जो हैं वो ले सकते हैं. बहुत टाइट ना हो, बहुत लूज ना हो. इट शुड बी समथिंग इन विच यू आर कंफर्टेबल. आपको अनकंफर्टेबल कर दे और कॉन्शियस कर दे तो आपका जो है काफ़ी हद तक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आप अपने जो है आप अपने कंफर्टेबल आप फील नहीं करेंगे. आप अपने ही आउटफिट के वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कभी अगर आपको कॉलर खींचना पड़ रहा है, लूज है, तो मान लीजिए फॉर लेडीज़ अगर लो कट है तो अगर आपको इस तरीके से शर्ट खींचनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा. पूरा फोकस जो है, पूरा अटेंशन आप उस कॉन्वर्जेशन पर, आप इंटरव्यू के दौरान पूरा फोकस इंटरव्यूअर्स क्या कह रहे हैं उस पर शायद आप ना लगा पाएँ. तो एक आउटफिट, आपको जो कंफर्टेबल आउटफिट है उसको ट्राई करके कीप इट रिंकल फ्री, और आपको उसको जो है पहले ही बिफोर हैंड आपको उसको तैयार कर लेना चाहिए. पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग. दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपकी जैसे मैंने कहा था भाई नेल पेंट वगैरह चिप तो नहीं हो रहा है. आपकी ओरल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई माउथ फ्रेशनर, इंटरव्यू से जस्ट पहले आपको जो है स्मोक और अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना चाहिए. कितना भी स्ट्रेस हो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. इसके अलावा हेयर डू है तो आप उसको सिंपल रखें. हेयर डू को अपने जो है बहुत मेसी ना हो. मेकअप, अगर फॉर लेडीज़ मेकअप एक्सेट्रा शुड बी लाइट, मिनिमम जो है आप उसको यूज़ करें. ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. टेकिंग, अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स में हैं, आप आए, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो यू शुड टेक अ शावर. आपको एक अच्छा क्लीन आपको कोलोन या फिर डीओ जो है माइल्ड यूज़ करना चाहिए. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वगैरह ना हो. कई लोगों को एलर्जी होती है. मे बी वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स हैज़ अ सिवियर एलर्जी विद स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स. तो ये जो चीज़ है ये आपके अगेंस्ट, तो हमेशा माइल्ड जो है यूज़ करना चाहिए. हाइजीन और ग्रूमिंग का काफ़ी आपको ख्याल रखना चाहिए. कलर जो है कलर मैचिंग होनी चाहिए. आपके शूज़, बेल्ट, स्पेशली फॉर मेन, टाई वगैरह जो है वो आपका इट शुड बी समवेयर जहाँ आपका जो है बेल्ट बकल होता है उस लेंथ तक होना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमने ड्रेस टू सक्सेस में डिस्कस की हैं, आप वो देख सकते हैं. और अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज का खासा जो है महत्व होता है ड्यूरिंग एनी इंटरव्यू. ये तो होगी पर्सनल इंटरव्यू की बातें. इनफैक्ट मैंने आपका जो आप आजकल वर्चुअल इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी रियलिटी हैं. रिसेशन का टाइम है, कोविड आउटब्रेक के बाद जो है आपका सारा का सारा हम काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जो है आजकल इंटरव्यूज़ जो हैं वो कोशिश की जाती है कि वर्चुअली किए जा सके. वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, आपका गूगल मीट वगैरह पर जब आप इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं, लाइटिंग का, ये भी आपका जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं ये भी मैंने कवर किए हैं इंटरव्यूज़ के अंदर. आप इसको भी आप जो है सर्च कर सकते हैं एक बार यूट्यूब पर. इसमें अगर आपका लाइट का सोर्स है तो वो आपको फ्रंट से हो, आपके बैक से ना हो. स्पेशली अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने लिए ग्लास पानी रख लिया हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आपने रख लिए हों. आप जो है सनलाइट कहीं ना कहीं जो लाइट सोर्स ठीक ठाक हो, आप ऐसी जगह पर, आप टेबल चेयर पर बैठे हुए हों, आपने वेब कनेक्टिविटी वगैरह अपनी चेक कर ली हो टाइम से. ये सारी चीज़ें एक बार आपने जो है बोल करके अपना एलिवेटर स्पीच आपने प्रिपेयर कर लिया. ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर काम करना चाहिए. एक मॉक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है. किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर आप बिठा करके कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो मिरर के सामने बैठ जाइए और कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको ज़रूर जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे एलिवेटर स्पीच की अगर आप बात करें तो भाई एलिवेटर स्पीच किस तरीके से प्रिपेयर, 1 to 1.5 minutes जस्ट प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ. से थिंग्स अबाउट how you can start doing it. You can link it up well. This has to be about your whole personality. Elevator speech ऐसा नहीं है कि आप पढ़ दे कि भाई I'm a chartered accountant, I cleared in say for example November 19, I have exemptions in this subject and I've scored so well, so you should give me. This is
not your elevator speech. Elevator speech should be able to highlight, it should be able to showcase your entire personality. So यहाँ पर it can be a little about your personal life, it can be about something about your accomplishments, about your achievements. It should give you a clear description of who you are, your interests, your professional interests, and also then you can link it up with your professional experiences. आपकी आर्टिकलशिप्स, आपकी इंटर्नशिप्स, आपके क्वालिफिकेशंस जो भी रहे हैं वो भी सब आप यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम वीडियोज़ ऑल्सो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल दैट आई हैव प्रिपेयर्ड स्मॉल शॉर्ट वीडियोज़ जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पर भी. आप मेरे नाम से अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे. भाई हाउ यू शुड आंसर सम ऑफ द बिहेवियरल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़. इसके अलावा जैसे अगर मुझे अपने बारे में बताना हो तो मैं किस तरीके से बताऊँगी. माय नेम इज़ रचना. आई क्वालिफाइड, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरी अभी नवंबर 19 में जो है क्लियर हुई है तो नाम तो मैंने पहले ही बता दिया. हैड अ फर्म वाइन हैंडशेक, मैंने अपना नाम बताया एंड देन नाउ आई एम सिटिंग फॉर द इंटरव्यू. सो आई हेल फ्रॉम स्टील सिटी भिलाई इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. My dad worked with the Bhilai Steel plant as a production engineer. We are a close-knit family of 4. My mother was a teacher. I have a brother who is a management consultant. And besides being a CA, I have keen interest in writing. I have written for several of the journals and student magazines in my college, and I've won several national and state level awards for elocution and for essay writing. I play badminton very well. I've won certain state level awards in playing badminton. And as a professional, now I told you about my interests. Other than my professional interests, I've also shared that I'm good at sports. I play badminton very well. Then now, as a professional, I feel that I am genuinely inclined, I'm deeply inclined towards research and analysis. I have keen interest in numbers. I have been appreciated by my clients or say by my principal for the quality of work that I deliver. So I have several accolades as well. I have independently, during my articleship, I have independently worked on many of the projects I have handled, and I have led the team of junior articles. So I have helped and I have substituted for many of my friends and colleagues during whenever it was required for them. So this shows my flexibility as well. I'm flexible to substitute for my friends in case of need. There were deliverables, sometimes the timelines were too tight, and there were some requirements from some colleagues, some friends. They were going through a tough time. Someone's mom was unwell, someone's child was unwell, so I substituted for them. So these kind of things you can always mention during the elevator speech. Prepare it in a way that it includes certain keywords. आप इसमें keywords का ध्यान रखेंगे, you will be able to prepare an excellent elevator speech. इसको आप refine कर सकते हैं. हर बार आप इसको record कीजिए, सुनिए, आप इसको refine कर सकते हैं. Depends. जैसे मैंने जो आपको बताया भाई, that is just an example. That is just an example. It can be refined. Every time you look at yourself into a mirror and you try speaking, you will develop a better speech. You need to refine it every time you say it. उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 4 से 5 बार रिकॉर्ड करके देखिए, you'll see a tangible difference. Now, for me, it will be different. I have 18 years or 20 years of work experience. For you, it will be different. You have your articleship and your internship in your favor. So, how to say things so that you are projected in, you project your positive case, and certainly it has to be crisp and to the point as well. बहुत ज़्यादा जो है self bragging नहीं लगना चाहिए. At the same time, you should be able to highlight essential skills that are requisite, that are required for this open position. That will be a good elevator speech. तो आपको ध्यान रखना है, जॉब इंटरव्यू के लिए चीज़ डिफरेंट होगी. If I'm consulting a client, if I'm speaking with a prospective client, it will be different. If I'm representing my organization in a seminar, in a webinar, this elevator speech will be different. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. मॉक प्रैक्टिस हमेशा कर लीजिए. सो अगर आपकी वीकनेस की बात हुई, भाई टेल अस सम एनी ऑफ योर वीकनेसेस. डू यू हैव यू मेड एनी मिस्टेक्स? सो ऑल दीज क्वेश्चंस, they don't you don't have to answer these with a simple yes or a no. Be judicious, be
wise, and you have to give diplomatic answers here. You can always tell that, do you feel judged when somebody is asking you some questions or somebody is looking at you? Do you feel judged? We all often feel judged. We all are humans. We make mistakes. We feel judged when people ask questions related to your job search, or have you been able to find a job, or have you been working, etc., etc. So all these things are a fact. They are all reality, but you have to answer these judiciously. About a mistake, just quote a mistake. You don't need to necessarily quote a personal weakness or a mistake. You need to quote something with which you can narrate a positive story, that this is a mistake I made, but I have taken a good lesson from it. Maybe it could be some of your CA days and your CA preparation story as well. और मैं अगर एक स्टोरी आपको बताती हूँ, मिस्टेक की स्टोरी, एक बार मैंने ये कई बार बताई भी है कि एक बार मैंने एक रिपोर्ट जो है काफ़ी हद तक बिना वेरीफाई किए, बिना सोर्स वेरीफाई किए मैंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी थी, एंड आई हैड गिवन टू माय बॉस हु वाज द CMD, एंड ही हैड टू present in a meeting basis that report. Based on that report, he had to make a presentation, and just half an hour बचा हुआ था. मैंने वो रिपोर्ट दी, and I realized after 10 minutes I realized that the numbers I had keyed in were wrong. By chance, I just paid attention to the source, and I figured that the number from the source was not verified. कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ है. When I inquired, I realized that the numbers were wrong. That was a blunder on my part. So immediately I checked the source without debating much, without wasting time. I got the correct numbers. मैंने सबसे पहले जाकर के कॉन्टैक्ट किया जो सोर्स, जो भी लिंक्स थे, मैंने उनको वेरीफाई सोर्स से ऑथेंटिकेट करा करके जो है नंबर्स लिए वहाँ से फटाफट. थैंकफुली जो फाइल प्रिपेयर की थी उसमें फॉर्मूलाज वगैरह ऑलरेडी थे. एक्सेल फाइल्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, तो फटाफट जो है नंबर्स डाले, नया रिपोर्ट जनरेट किया. आई वेंट देयर, आई अपोलोजाइज्ड टू हिम. आई सेड, आई एम सो सॉरी, द लास्ट मिनट वर्क वॉट एवर यू डिड, आपने जो भी हाईलाइट वगैरह की, ये आपको फिर से करना पड़ेगा. देयर वाज सम मिस्टेक इन द नंबर्स. द रिपोर्ट विच यू हैव इन हैंड इज रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट रिपोर्ट, एंड आई अपोलोजाइज my mistake. And from there I took a lesson. From there I always verify my numbers. चाहे किसी ने कितना भी verify किया हो, delegate करने के बाद भी I ensure कि जो numbers हैं, जो sources हैं, वो verified हो, especially when we are dealing with numbers. तो इस तरीके से उसके बाद कभी report में या इस तरीके से analysis में मुझसे गलती नहीं हुई. So this can be a good instance जहाँ पर मैं quote कर सकती हूँ कि मुझसे mistake हुई थी, and I have taken a lesson from there. इस तरीके से आपने क्या lesson लिया वो ज़्यादा important है. मिस्टेक सबसे होती हैं. अगर आप वीकनेस की बात करें तो समटाइम्स आप ऐसे वीकनेस को बताइए जिसको आप एक पॉजिटिव तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं. समटाइम्स बीइंग ओवर कमिटेड और बीइंग ओवर फ्लेक्सिबल, बीइंग ओवर हार्ड वर्किंग कैन बी अ वीकनेस. कि भाई मैं इतनी कमिटेड हूँ अपने काम के लिए, आई एम सो कमिटेड, समटाइम्स आई ओवरलुक माई पर्सनल हेल्थ. सो my health is equally important. So I think that I need to balance. Sometimes I'm so flexible that I have always been taking up work from others. I've been substituting for others. So sometimes I feel that people may take advantage of me. Sometimes somebody may fool me. Maybe emotionally, if I don't balance it out, I feel that someone may take advantage of me, of my over flexibility and of my commitment, of my dependability. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं अपने एलिवेटर स्पीच में. हाउ योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स सी यू, दे सी मी एज अ डिपेंडेबल पर्सन. माई हार्ड वर्क कैन बी क्लियरली seen all through the results of my CA exams. I've scored well, and I have exemptions in this paper. In case you have a rank and all, you can highlight that. Even if you have larger number of attempts, वो बहुत ज़्यादा matter नहीं करता है. You have to showcase what you have learned, what you have gained. Since you have more number of attempts, what you have gained with that every extra attempt that you have taken. I have a video for that as well. तो आप ये जो चीज़ें हैं ये आप सीख सकते हैं कैसे किसी भी प्रॉब्लम को आप पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. ये आपके फेवर में होगा ड्यूरिंग एनी इंटरव्यू. आपको जो भी आपकी मॉक प्रैक्टिस की मैंने ये थोड़ी बहुत आपको टिप्स दी हैं, बताई हैं, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स मिरर में देख करके प्रैक्टिस कीजिए. अपना बैग और ट्रैवल वगैरह जो है वो पहले से प्लान कर लीजिए. लास्ट मिनट की अफरा तफरी में मत पड़िएगा. आपको बैग जो भी आपको प्लान करना है, आप तो धीरे धीरे जो है खुल रहे हैं सेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे आर रिज्यूमिंग, बैक ऑफिसेस आर रिज्यूमिंग. तो ऑल दिस टाइम स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम जो है वो होने वाला है. इट्स ऑल अबाउट restoring the broken systems, restoring the your
सप्लाई चेन्स जो हैं उनको पूरा उस पर रिवर्क करने का काम है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो सब अब करना होगा, रिस्टोर करना होगा, सारे सिस्टम्स को जोड़ना होगा। तो जो कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो मैनेजर्स में इंटरव्यूअर्स देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव मैनेजर्स में, प्रोस्पेक्टिव लीडर्स में, वो बहुत सारी इफेक्टिव लिसनिंग कैन बी अ वेरी गुड क्वालिटी। इफ़ यू आर अटेंटिव एंड इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली, दैट कैन बी अ वेरी गुड क्वालिटी। इफ़ यू आर अ गुड टीम प्लेयर, दैट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी दैट यू possess। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ये सब जो है प्रोडक्ट लाइन्स वगैरह रेस्टोर करने में, प्रोसेस रेस्टोर करने में बहुत अभी ये सब क्वालिटीज़ काम आने वाली हैं। एंड एवरी मोरलेस अगर हम बात करें, कोविड जो है उसने सब कुछ इम्पैक्ट किया है। इट हैज़ इम्पैक्टेड every workplace, every DNA of every workplace has been impacted in some way. The world is a different place now. The post-COVID times are going to be altogether different times, and there'll be many qualities in addition to your technical abilities which employers would be seeking. तो आपको इसका फ़ायदा लेना है, आपको इसका फ़ायदा लेना है, और ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आप डेमोन्स्ट्रेट अगर करें तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ मार्क। इंटरव्यू में आप अपनी जगह जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर जो है बना सकते हैं। एक अच्छी नींद आपको होनी चाहिए ताकि वो दिन आपका जो सो दैट यू नॉट स्लीप, यू नॉट ड्राउजी, यू आर अटेंटिव एंड यू नींद एक अगर अच्छी हो जाए, इफ़ यू स्लीप वेल फॉर 6 to 7 hours, इफ यू हैव स्लेप्ट वेल इन द प्रीवियस नाइट, यू लुक फ्रेश। आप ज़्यादा जो है स्मार्ट नज़र आते हैं, आप ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं, आप ज़्यादा रिलैक्स नज़र आते हैं, एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर एनी इंटरव्यू। इफ़ यू लुक pleasing, if your expressions are cool, if you are relaxed, if you're comfortable, then certainly you will come across as somebody who has greater potential। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी एक लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को जो है वो आप इग्नोर मत कीजिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी विच विल हेल्प यू परफॉर्म बेटर। लाइट अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, कभी भी बहुत ग्रीसी ऑयली ना खाएं इंटरव्यू की जस्ट पहले, बर्ब्स आना बीच में या फिर आपको अनकंफर्टेबल एसिडिटी फील होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अमाउंट करता है। तो एक लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, यू ऑल नो व्हाट लाइट एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इज, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। और एक अच्छी जो है प्रीवियस नाइट यू मस्ट स्लीप वेल, एटलीस्ट 6 hours की स्लीप रिकमेंडेड है। वो आपका नेक्स्ट डे बहुत ही कंफर्टेबल बना देती, कॉन्फिडेंट आप नज़र आते हैं। अगर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, इफ़ योर बॉडी इज़ फीलिंग फिट, यू विल सर्टनली बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तो ये अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज वाले पार्ट पर, और ये जो थोड़ा सा आपका जो है बाकी हेल्थ वाला पार्ट है, हेल्थ रिज्यूमे जो आपका है, इस पर आप ध्यान दीजिए और फिर आप डिफरेंस देखिए। किसी भी इंटरव्यू के पहले, कैसा भी इंटरव्यू हो, आपको जो है हर इंटरव्यू को इम्पोर्टेंट ट्रीट करना चाहिए और आपको उसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस दोस्तों एम्प्लॉयर के क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज से ज़्यादा, दिस आई कैन कॉन्फिडेंटली से बिकॉज दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई सीक फ्रॉम द इंटरव्यूईज। जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, व्हाट आई सीक इज क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स एंड विजन। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 year डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 year डाउन द लाइन, ये क्वेश्चंस क्लियरली आपका गोल सेटिंग जो होता है, गोल सेटिंग इज अगेन अ ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स जो आपके साथ साथ जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं, जो आपके पर्सनालिटी का ट्रेड ही होते हैं, कि भाई आप जो है एक्शनेबल चंक्स में ब्रेक डाउन कर पाते हैं अपने विजन को, गोल्स को। आपका गोल है भाई वॉट एवर यू वांट टू बिकम आफ्टर 10 years, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू सी योरसेल्फ एज रनिंग सम गुड बिजनेस, आप प्रैक्टिस चाहते हैं अपनी 15 साल के बाद। ये सब क्या दिखाते हैं? क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स। इफ यू आर क्लियर विथ योर गोल्स एंड विजन, certainly you will be able to contribute better to the organization. You will be able to align it in some way with your organizational goals as well. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो questions हैं, ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपके goals के understanding के लिए, आपके vision के understanding के लिए। ये बहुत कई बार मैंने देखा है, जब क्वेश्चंस की आपको भी बताऊंगी, रीडायरेक्टिंग क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस रीडायरेक्ट करने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना, तो बड़े फनी बड़े अजीब से जो है आंसर्स मिलते हैं कई बार कैंडिडेट से, बड़े मज़ा आता है उनमें, सुन करके भी मज़ा आता है। आपसे आगे मैं डिस्कस करूँगी अभी। ऑर्गेनाइजेशन के अब यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनको ये भी देखना पसंद होगा कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या राय है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। Why do you want to join us? Why do you think we should hire you? All these questions, they want to perhaps just grill you to understand what is the understanding of the work that you have developed so far. आपने किस तरीके से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के काम को आप समझ रहे हैं या फिर आप समझ कर आए हैं, आप प्रिपेयर होकर आए हैं कि नहीं। प्रिपरेशन इज समथिंग दैट एवरी इंटरव्यूअर वुड लाइक।
If you have prepared well for the interview, there's a greater chance it's likely that you will get selected. तो आपको going prepared for an interview is one expectation of every employer, that if you have come for the interview, if we have given you a chance, that you must come prepared, then you must come prepared. This is one expectation of every employer. Effective listening, that you are able to understand the questions that we are asking. क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? आपको जो भी कहा जा रहा है आप इफेक्टिवली समझ पा रहे हैं? क्या आप यू आर एबल टू मेक सेंस, यू आर एबल टू कॉम्प्रहेंड वेल? ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं इफेक्टिव टीम प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होती हैं. आप आगे जाकर कंट्रीब्यूट कर पाएँ. आप जो है सारे डिपार्टमेंट से कई बार कम्युनिकेशन वगैरह जो है बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है. आप कहीं पर कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप इस टैकलिंग के बिना नहीं देखेंगे. रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड. इसके बिना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है. कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का एक प्रिंसिपल है इफेक्टिव लिसनिंग. यू शुड बी अटेंटिव. इफेक्टिव लिसनिंग, बिना इफेक्टिव लिसनिंग के कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है. If you are targeting to become a manager and a leader, तो इन सब बातों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है that you are an effective listener. Unless you listen carefully, unless you listen attentively, आप जो है रिस्पॉन्ड, आपका जो आप रिस्पॉन्ड भी उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे. रिस्पॉन्स आपका हमेशा बात समझने के बाद होना चाहिए. आफ्टर यू हैव हर्ड, आफ्टर यू लिसन अटेंटिवली, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड मोस्ट इफेक्टिवली. तो ये आपको जो है बात समझने की है. एग्जिबिटिंग कॉन्फिडेंस एंड पैशन. अब जो भी काम आपका है, जो भी आप जानते हैं अपने स्किल्स के बारे में, आप कितने पैशनेट हैं, आप कितना जो है कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं, वो अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं तो आपका जो है ये काफ़ी अच्छा मैटर करता है. ये बात जो है काफ़ी आपके लिए फेवरेबल हो सकती है. दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑलवेज, दैट द कैंडिडेट मस्ट एग्जिबिट सम कॉन्फिडेंस एंड सम लेवल ऑफ पैशन टुवर्ड्स दिस स्किल्स, टुवर्ड्स दिस जॉब. सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपकी, अब जितना बेहतर जो है आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, कितने पोलाइट आप हैं, कितने मैनरिज्म आपके अंदर हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया. और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, आपकी आर्टिकुलेशन एबिलिटीज़, आइडियाज़ तो हैं आपके पास. हाउ वेल आर यू एबल टू आर्टिकुलेट दीज आइडियाज़? ये लॉस ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए. योर डिक्शन शुड बी गुड, दैट यू आर एबल टू ट्रांसलेट द आइडियाज़ वेल. आइडियाज़ तो हैं, बट किस काम के अगर आप उन आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा ही ना पाएँ, तो इस पर आपको थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए. जो कुछ पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट वो हैं विलिंगनेस टू लर्न. आई टोल्ड यू कोचेबिलिटी, ये मैंने शुरुआत में ही बात की थी. एक जूनियर मिड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों. Coachable candidates who are willing to learn would certainly be a preference of any employer over the rigid candidates. जिनमें rigidity होती है, जो सीखने समझने को तैयार नहीं होते, थोड़ा सा close जो होते हैं, उनकी अपेक्षा जो है कोई भी जो willing candidate हैं वो उनका लर्निंग कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीप होता है, उनकी राइज हमेशा जो है ज़्यादा बेहतर होती है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल. ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है और ये रियलिटी भी है. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, बी विलिंग टू लर्न. क्या क्या इस पोजीशन से जो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आई मे बी रिक्वायर्ड टू लर्न. सो ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल्स फॉर यू. Teamwork abilities and problem solving skills. These are other important skills that one candidate is required to possess. वो उनकी जो है ये requirements हो सकती है employers की. आजकल teamwork abilities की अगर हम बात करें, इसमें बहुत कुछ आ जाता है. resilience हो गया, आपकी conflict management capabilities जो होगी, conflict resolve आप किस तरीके से करते हैं, तो आप effective team player हो सकते हैं. आप अपने co-workers के साथ जो है किस तरीके का आपका treatment होता है. अगर generally अगर आपका communication जो है वो fair है, if you can work as a team player. मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट, आपको ये चीज़ें सुनने में सिंपल लग रही होंगी, मेरे साथ डेली बेसिस पे when I'm counseling and mentoring professionals like chartered accountants, company secretaries, other engineers as well, from diverse backgrounds. I counsel professionals, senior level, junior level, student level. तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई लोग कई बार सामने आकर के बोलते हैं, मैम वी कांट वर्क इन अ टीम.
तो ये आप मुझे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं. आई फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल टू वर्क इन अ टीम. जस्ट फ्यू डेज अगो वन कैंडिडेट अप्रोच्ड मी एंड ही आस्क्ड मी. अब ये एक एसेंशियल क्वालिटी है आज के डेट में. अभी आप देखें, अगर गिग इकॉनमी की हम बात करें तो अभी गिग वर्कर्स, ये गिग टास्क फोर्स जो है, ये यहाँ पर कोई ऐसा लिमिटेशन, कोई पाबंदी नहीं है कि कौन ना एज ग्रुप की आपकी पाबंदी है. यहाँ पर मल्टी जनरेशनल जो है यहाँ पर टास्क फोर्स है. अब आप टीम वर्किंग अगर एबिलिटीज़ आप में नहीं है, रेजिलियंस अगर आप में नहीं है, तो बिना इसके काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. Every organization is in some way trying to attain that equilibrium at work. सप्लाई चेन मीट करने की सब जो है कोशिश में लगे हुए हैं. द फ्यूचर इज़ लुकिंग फ्रेजाइल. इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कोविड का हुआ है, तो इसके लिए टीम वर्क एबिलिटीज़ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन अप्रोच अगर आपका रहे तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. And employers are able to assess, interviewers are able to assess these skills through whatever questions they are asking you, whatever discussions they are having with you. ड्यूरिंग द इंटरव्यू दोस्तों ये बहुत ध्यान रखिए, आप अच्छे से आप जब बातचीत करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, प्रिपेयर वेल फॉर क्रिएटिंग दैट फर्स्ट इंप्रेशन, अ फर्म हैंडशेक, अ वार्म ग्रीटिंग. अगर आप जो है हैंडशेक अगर वर्चुअल इंटरव्यू के दौरान पॉसिबल नहीं है, तो आप अपना जो बैठने का आपका जो पोस्चर है, आप अपना स्पाइन सीधा रखें, आप आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन रखें. हैंडशेक आप नहीं कर सकते, बट एक वार्म ग्रीटिंग आप कर सकते हैं. हाउ आर यू आप पूछ सकते हैं. होप यू आर हैविंग अ गुड डे, ये आप पूछ सकते हैं. ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं इंटरव्यूअर से. अगर आप शाय होकर के एक रोबोटिक लैंग्वेज का आप ऐसे जो है रोबोटिक एक्सप्रेशंस का आप यूज़ करते हैं, सर्टेनली यू लुक नर्वस. ऐसा लगता है आपको ज़बरदस्ती जो है एक रोबोट बना करके बिठा दिया गया है एंड यू आर रेडी टू से येस और नो टू द क्वेश्चंस आस्क्ड. रादर इसको आप एक कॉन्वर्जेशन की तरह जो है बनाने की कोशिश कीजिए. इट विल बी वेरी इफेक्टिव. स्पेशली क्या होता है वर्चुअल इंटरव्यूज़ में, हमारा नॉन वर्बल कंपोनेंट काफ़ी हद तक मिसिंग रहता है. वर्चुअल जो है वर्चुअल इंटरव्यूज़ है वो कभी भी पर्सनल इंटरव्यूज़ की जगह नहीं ले सकते. बहुत सारे यहाँ पर नॉन वर्बल कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं. तो यहाँ पर आपका जो पैरालिंग्विस्टिक्स हो गए, आपका पिच, टोन ऑफ योर वॉइस, योर आई कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, योर अपर बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस तरीके से आपने अपना पोस्चर रखा है, हाथों को आप किस तरीके से मूव करते हैं. कोशिश कीजिए अगर वर्चुअल इंटरव्यू पे आप हैं तो आप उसको विंडो को मैक्सिमाइज रखिए. जितना आप ऐसे बैठिए कि आपका सिर्फ फेस नहीं, आपका अपर टॉर्सो नज़र आए. आपके ऊपर के जैसे अगर शर्ट पहना होता है तो अंटिल योर आपके बेल्ट तक या फिर एटलीस्ट 3-4 of your shirt buttons should be visible. तो इतनी आप visibility रखेंगे, your upper torso is visible. Similarly for ladies also, आपका अगर थोड़ा सा जो है आपका above the belly button यहाँ तक अगर आपका जो upper torso अगर visible है, so that enhances the effectiveness of your interaction. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत काम करते हैं. अगर आपके फ्रोनिंग एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप हर एक क्वेश्चन जो है वो विचलित आप हो जा रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू remain calm and comfortable with the questions that are being asked, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है. मेंटेन योर काम, मेंटेन योर पीस. आपको जो है कंफर्टेबल, आपको किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, मेंटेन अ प्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू आंसर. आपको उसको केयरफुली सुनिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. वर्चुअल इंटरव्यूज़ के दौरान ये और ज़्यादा आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अटेंटिव रहे वहाँ पर. ऐसा स्पेस लीजिए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पर आसपास बहुत लोग ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर सकें. अलग एक ऐसा स्पेस लीजिए जहाँ पर लाइटिंग वगैरह अच्छी हो, जहाँ आप बैठ करके कंफर्टेबली बात कर सकें. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड स्टेयरिंग एट समबडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. आई हैव टोल्ड दिस अगेन एंड अगेन. आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब होता है कंफर्टेबली आप किसी से आंखें मिलाकर जब बात करते हैं, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस. जबकि अगर आप किसी को स्टेयर करते हैं, सो दैट मेक्स वन अनकंफर्टेबल. आपको ये चीज़ें हम सब समझते हैं. समटाइम्स यू नो व्हेन we come from certain rural remote backgrounds, थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होती है to catch up with these terms, with how things work and how things are done. बट ये किया जा सकता है. थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आप डेवलप कर सकते हैं. अपने बारे में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अवॉइड कीजिए. अपने बारे में मेरी ये वीकनेस है. आई हर्ड दिस लॉट ऑफ टाइम्स whenever I interact, whenever I offer mock sessions to my trainees during my mentoring sessions, कि अपने बारे में मेरी ये weakness है, my weakness is this, my weakness is this, I have not been able to do so, I have not. So you don't have to say any negative statement about yourself. Try to keep it as positive as you can.
अपने पॉजिटिव्स आप वहाँ पर हाईलाइट करने गए हैं, अपने नेगेटिव्स नहीं। अगर कोई बात नेगेटिव है भी, जैसे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर बात हो गई, आपने कोई ऐसी वीकनेस है जो आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछ ली गई है, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई लेसन पॉजिटिव निकालना है। जो बात हो चुकी है, जो पास्ट निकल चुका है, वो जो है उसको, वो नेगेटिव था, पॉजिटिव था, वहाँ से आपने क्या पॉजिटिव निकाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बात निकल गई, पास्ट इज पास्ट नाउ, यू कांट डू मच अबाउट इट, सो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिविटीज फ्रॉम द पास्ट। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स बी फोकस्ड ऑन गुड प्रेजेंट एंड अ गुड फ्यूचर। तो आपने वहाँ से क्या लेसन्स निकाले, क्या पॉजिटिव लेसन्स निकाले, ये जो हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 से 1.5 मिनट की आपके एलिवेटर स्पीच आप तैयार रखिए। मैंने आपको अभी इलस्ट्रेशन दिया था, आई जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल, सो यू ट्राई एंड राइट इट डाउन एंड देन ट्राई टू स्पीक इट विदाउट रेफरेंस। एक आध बार आपको हो सकता है देखना पड़े, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई टू स्पीक विथ योरसेल्फ बाय लुकिंग इनटू अ मिरर एंड देन रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड योर एलिवेटर स्पीच. Record it once, twice, thrice, and when you do it for the 4th time, you will certainly see a tangible difference. Don't avoid negotiations of any kind. आप कोई भी conversation अगर avoid करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि आपको conversation में आप engage नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप nervous feel कर रहे हैं। आपको avoid नहीं करना है, just be prepared with that. Try to present, always prepare short stories to demonstrate your skill set. जैसे मैंने आपको बताया भाई, what is the biggest mistake that you did, what are some of your weaknesses. तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी मेरे बॉस से रिलेटेड, जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो कैसे गलत हो गई थी, तो आप ऐसे अपने बारे में रियल शॉर्ट स्टोरीज, सो दैट यू डोंट हैव टू फेक इट, जस्ट गो बैक, जस्ट लुक इनटू, मैंने आपको अपने रिज्यूमे और कवर लेटर रिव्यू करने के लिए बोला था, जो भी स्किल्स आपने मेंशन किए हैं, जस्ट गो बैक, जस्ट अंडरस्टैंड वेल, जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू remember what has been your work experience, and from there pick up your बेस्ट स्किल्स जो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और उनके बारे में छोटी छोटी स्टोरीज, कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएँ आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपके वीकनेसेस के बारे में, जो स्किल्स आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं उसके बारे में, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे जहाँ पर आपने डेमोन्स्ट्रेट की थी ये एबिलिटी। जैसे भाई, when did you give us one instance where you had a difficult situation with your boss but you handled it well. Give us an instance where you had to challenge a management decision. तो ऐसा कोई instance हुआ हो and how effectively you handled. I have given you a complete video on how to answer behavioral questions. You can look for it in the YouTube, और वहाँ पर आप clearly जो है ढूंढ सकते हैं answers. कार approach होता है, context, एक्शन और रिजल्ट का अप्रोच जो होता है, और साथ में स्टार अप्रोच होता है, सिचुएशन, टास्क, क्या सिचुएशन थी, क्या आपका टास्क था, क्या एक्शन आपने लिया और क्या रिजल्ट आया। ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल होती है टू आंसर बिहेवियरल क्वेश्चंस। इन्हीं जो है इन्हीं अप्रोच पर बेस्ड आप छोटी छोटी स्टोरीज अपने बारे में 1 से 1.5 मिनट की, 2 मिनट की स्टोरीज आप बना सकते हैं। दैट कैन मेक योर कॉन्वर्जेशन वेरी इफेक्टिव। दोस्तों, इस बारे में बात करना can actually take up entire day. I am so passionate about preparing candidates for interviews and help them develop their communication skills, their soft skills. थोड़ा सा मुझे रुकना जो है मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। आप में से जो और कुछ पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चंस जिनके अगर हों, आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अनअकैडमी पर मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम क्विकली टेकिंग यू थ्रू दीज स्लाइड्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। रीडायरेक्टिंग क्वेश्चंस एंड फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो क्वेश्चंस का जवाब देते समय आप कुछ क्वेश्चंस पूछे भी, ताकि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपका इंटरेस्ट लेवल शो करते हैं, वो ये शो करते हैं कि आप कितना बेहतर एंगेज कर पा रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने इंटरव्यूअर्स के साथ आप एंगेज कर पा रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछने का चांस दिया जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, दैट इट्स अ चांस बीइंग गिवन टू यू टू आस्क द क्वेश्चंस। डोंट आस्क नैरो सेल्फ फोकस्ड क्वेश्चंस। ये मैं हमेशा से बताना चाहती हूँ कैंडिडेट्स को, हमेशा से मैं बताना चाहती हूँ कि भाई हाउ मेनी टी ब्रेक्स कैन वी टेक, है ना, हाउ मेनी प्रमोशंस कैन आई एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 2 years। तो ये जो सेल्फ फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप जो ये टी ब्रेक वाले क्वेश्चंस हैं, टाइमिंग भी स्ट्रिक्टली मेंटेन 10 to 6, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप फर्स्ट लेवल एचआर जो है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये इंटरव्यूअर्स जो आपके सामने हैं ये एक्सपर्ट लेवल पे हैं, दे हैव बीन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम टाइम, तो इनसे आप थोड़े से अगर ब्रॉड क्वेश्चन पूछें, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाएं, दैट विल बी beneficial for you. Ask some questions that show that you are willing, that you are interested in this job and organization.
So you may ask that what are the biggest challenges I may face in the first 6 months. You may ask that what should be my focus in this role to fulfill your expectations in the initial 3-4 months or say couple of weeks. You may ask that you have been in the organization for so long. What are the best things that you like about the organization? What do you like the best about the organization's employee culture? ये जो चीज़ें हैं ये दिखाएंगी कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो. इसके बाद एक बढ़िया सा थैंक यू और एक अप्रिसिएशन ना, जिसके लिए उन्होंने आपको कंसीडर किया, आपको इतना टाइम दिया इंटरव्यू में. ये थैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट बिल्ड्स एन इंस्टेंट रेपो. ये बहुत ज़रूरी होता है. और उसके बाद में आप एक फॉलो अप, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, और एक थैंक यू नोट आप अपने फर्स्ट लेवल HR को भी भेज सकते हैं. ये आपके लिए ज़रूरी है. जनरल जो सजेशंस हैं दोस्तों, जो गाइडलाइंस हैं, कभी भी अगर आप जा रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10 मिनट्स पहले जो है पहुंच जाइए. 7 to 10 मिनट्स एक अच्छा टाइम होता है पहले पहुंचने के लिए. स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए. क्यों नहीं लगाने चाहिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी. अवॉइड रोबोटिक आंसर्स. ऑलवेज ऐड अ पर्सनल टच. बिल्कुल रोबोटिक येस और नो नहीं. इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू बिना पर्सनल टच के कैसा पर्सनल इंटरव्यू? रोबोटिक आंसर्स, रोबोटिक लैंग्वेज जो है, गूगल वाले आंसर्स अवॉइड कीजिए. प्रिपेयर योर ओन आंसर्स. प्रिपेयर योर ओन आंसर्स. टेक टाइम. Take time. There is no hurry to answer any of the questions. Need be you can seek permission to answer in a different language. अगर आपको लैंग्वेज का इशू आ रहा है कहीं पर, अगर आपको लगता है कि भाई this I can answer better in Hindi or maybe in my मदर टंग इन सब इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ दैट लोकेशन, तो आप वो भी परमिशन ले सकते हैं. अगर आप मुंबई में हैं, अगर आपको लगता है कोई आंसर आप हिंदी या मराठी में दे सकते हैं, दैट कैन बी डन विथ परमिशन. मे बी ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस मे नॉट अलाउ यू और मे बी मे नॉट kind of like it, seeking permission, but if it is some organization जहाँ पर आपको client facing, जहाँ पर आपको जो है regular बाहर external लोगों के साथ में touch maintain करना है, external parties के साथ में, and where Marathi is a dominating language, you may prefer to answer in Marathi as well. There is no hassle. कहीं इसी तरीके से जो है बहुत सारे इंडिजिनस लैंग्वेजेस होती है, वहाँ पर कई सारे क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं. कहीं पर जहाँ पर लोकल जो है आपको केटर करना होता है एक्सटर्नल पार्टीज को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग 4 एंड बिग 10 बिग 20 ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर लैंग्वेज का प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है. तो बाकी जगह आप जो है डेफिनेटली यू कैन चूज टू आंसर. यू कैन रिक्वेस्ट देम टू अलाउ यू टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इससे अगर आपको बेहतर कॉन्फिडेंस मिलता है, तो अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये आंसर मैं इस लैंग्वेज में जो है, मुझे इंग्लिश में बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरा डिक्शन जो है शायद थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, यहाँ पर मैं उतना क्लियरली अपनी बात नहीं रख पा रहा या नहीं रख पा रही, सो यू मे सीक परमिशन. इफ़ यू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट कॉन्फिडेंटली. Whatever you're doing through the conversation, through the interview, do it confidently. Seek permission, pay attention to what they are saying. Whenever you say something, maintain the level of politeness. तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में ऐड होती चली जाती हैं. इम्प्रेस करने के बजाय कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए वो चाहते क्या हैं. इम्प्रेशन तो हो गया, जो आपने फर्स्ट इम्प्रेशन शुरू किया है आपने तड़ाक से, दैट इज डन. नाउ थ्रू द प्रोसेस ट्राई टू कनेक्ट विद देम. Right? Try to develop the rapport. Try to ask questions. Right? Try to redirect questions. पूछते जाइए और बताते भी जाइए. Don't be too loud or too low, too fast or too slow. ये तो मैंने कभी रिदम बना दिया था. कल बैठे बैठे बहुत तेज़ अगर आप बोलते हैं या फिर आप इतना लो बोलते हैं कि आप ऑडिबल ही नहीं है, स्पेशली वर्चुअल इंटरव्यूज़ के दौरान आपको देखना चाहिए कि आप मतलब आपका पिच जो है वो इतना हो कि आप आराम से ऑडिबल हो, आपकी बात जो है सुनाई दे जाए इंटरव्यूअर्स को. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू असेस यू. ये कई बार दिक्कत आती है इस तरीके की, स्पेशली ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शंस. प्लीज़ से अगेन, प्लीज़ रिपीट, ये कई बार बोलना पड़ता है. तो आप पहले ही अपना माइक टेस्टिंग कर लीजिए, कनेक्शन जो है वो क्लियर कर लीजिए. अगर उनकी आवाज़ धीरे आ रही है तो आप पहले ही उनको कन्वे कर दें कि सर मैम यू हैव टू बी लिटिल लाउडर, द कनेक्टिविटी इज़ नॉट सो गुड, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. या फिर आपको मतलब ऑडिबल होने के लिए थोड़ा सा आपको लाउड होना पड़ेगा. ये बात आप पहले ही कन्वे कर सकते हैं. इतना फास्ट नहीं बोले कि किसी को समझ में ना आए और इतना स्लो भी ना बोले कि वो टाइम कंज्यूमिंग लगे. मेंटेन इट, ट्राई टू प्रैक्टिस इट. राइट, जस्ट पहले इंटरव्यू के थोड़ा सा पावर पोजेस क्या, आप खड़े होकर के दोनों पैरों को थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे रख करके अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड स्ट्रेच कीजिए. हैंड्स को अपने आप नीचे खींचिए ऐसे फिस्ट बांध करके, और ये 2-3 बार आप जो है स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए. पावर पोजेस प्रैक्टिस करने से आपको
इंस्टेंट कॉन्फिडेंट और इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील होता है। इस तरीके से आप जो है इसको बैकवर्ड स्ट्रेच करके मूव कर सकते हैं, अपने नेक को आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह होता है ना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि आपकी नर्व्स को पूरी तरह से काम और रिलैक्स ये कर देती है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इनहेल करते हैं, काउंट 4 while inhaling, hold 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4। डीप ब्रीथ 2-3 बार कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग आपको काफ़ी इंस्टेंट आपको रिलैक्सेशन फील होगा। आपकी नर्व्स जो है ये काम कर देता है, काफ़ी हद तक आपकी नर्व्स को ये कूल डाउन कर देता है। तो आपको ये चीज़ें आप तुरंत के तुरंत करके आराम से 1-2 मिनट में आप करके फिर आप अंदर जा सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरव्यू के पहले, वर्चुअल इंटरव्यू है तो उसके पहले भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है डेस्परेशन है, काम की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, फिर भी इसको बहुत मतलब आप इसको इतना जो है आप अपने एक्साइटमेंट को, आप अपने डेस्परेशन को ओपन ना होने दीजिए। इसको आप कन्वर्सेशन के दौरान जो है इसको आप सामने मत लाइए, इसको आप सामने मत रखिए। ऑफन इट हैम्पर्स मोर देन इट विल हेल्प यू, इट विल डैमेज रादर योर प्रोफेशनल इमेज। तो आप अपने स्किल्स को हाईलाइट करिए। यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट यू विल डू जस्टिस विद द पोजीशन, विद द रोल, एंड दैट यू आर एक्साइटेड टू जॉइन। बट आपको अपना डेस्परेशन किसी भी तरीके से जो है, लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सामने ला करके, अपने फाइनेंशियल क्रंचेस का दावा करके अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी, इट मे पुट यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन लेटर, नेगोशिएशंस के टाइम पे, या फिर और अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे शुरू हो गए वहाँ पर जो आपको ग्रिल करने लग जाए, दैट मे पुट यू इन अ फिक्स और इट मे पुट यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो अवॉइड दैट। सो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो एक्चुअली मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सबको बताने के लिए, और आपकी जॉब सर्च को ये थोड़ा सा स्मूथ बना सकते हैं। आपके जो है इंटरव्यू को, आपके इंटायर प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू को जो है ये थोड़ा सा इसमें ज़रूर योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके काम के हैं। अगर आप इस पर अमल करते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आई एम श्योर you will be benefited. In case you have any questions, you are most welcome to connect with me over LinkedIn messages, or you can write to me on Unacademy as well. In case you are interested to buy any subscriptions on Unacademy, you can use my referral code KHARE10 and you may avail some instant discount over those subscriptions. Take care. You all have a fantastic day ahead. Bye-bye. We'll catch you soon with some more interesting topics to discuss. Take care. Bye-bye.